Hello and welcome students to my YouTube channel JEE Math Guru, and this is the lecture number 2 of indefinite integration for MHT CET. So students, in this lecture again we are going to solve 10 important MCQs of indefinite integration. लास्ट लेक्चर में हमने 10 important MCQs सॉल्व किए हैं, and in this lecture we will going to start the question number 11 to 20. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. So students, without wasting time, here is the question number 11 for you. So you can also try to solve this question. आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. So students, here I have to find the integration of क्या फंक्शन दिया है, integration of sin x to the power 6 plus cos x to the power 6 upon sin square x into cos square x dx. First I will write this integration of sin x to the power 6 plus cos x to the power 6 upon sin square x into cos square x dx. तो इस तरह का ये फंक्शन है, हमें इसे इंटीग्रेट करने का है. तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से फॉर्मूले हमें यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए. So students, I have some important results of trigonometry. See these important results. If I have the expression sin x to the power 4 plus cos x to the power 4, then I can write it as 1 minus 2 sin square x cos square x. If I have this expression sin x to the power 6 plus cos x to the power 6, then I can write it as 1 minus 2 sin square x cos square x. If I have these two functions sin x to the power 4 plus cos square x या cos square x to the power 4 plus sin square x, and these two results are equal to 1 minus sin square x into cos square x. So these four important results are very useful in integration, in trigonometry, in differentiation. इससे आपका काफ़ी समय बच सकता है. मिनिमम टाइम में आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो नोट डाउन ऑल दीज फोर रिजल्ट्स एंड आई विल यूज दिस रिजल्ट. sin x to the power 6 plus cos x to the power 6 is equal to what? 1 minus 3 sin square x into cos square x, okay, upon sin square x into cos square x dx. तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं. इसे मैं सेपरेट कर देता हूँ. 1 अपॉन sin square x into cos square x minus 3 sin square cos square upon sin square cos square. तो sin square cos square कैंसिल होगा, माइनस 3 dx. इस तरह का इंटीग्रेशन हमें मिला है. अब इसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो दिस इज sec square x into cosec square x. तो इसे भी हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं. तो आपको ये बेसिक प्रॉब्लम हुआ ही होगा. यहाँ पे 1 को हमें एडजस्टमेंट करने की है आइडेंटिटी sin square x प्लस cos square x. अब मैं इसे फिर से सेपरेट करता हूँ. sin square कैंसिल, 1 अपॉन cos square sec square x प्लस cos square कैंसिल, 1 अपॉन sin square cosec square x माइनस 3 dx. तो इस तरह का ये फंक्शन बन गया है. नाउ राइट द इंटीग्रेशन प्रॉपरली. sec square x का इंटीग्रेशन सबको पता है. tan x इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x इज minus cot x minus 3 constant integration of 1 dx is x plus c. So this is the integration of this function tan x minus cot x minus 3x plus c. So students, इन सभी रिजल्ट्स का यूज़ करके हम इस फंक्शन को इजीली या कम टाइम में इंटीग्रेट कर लिया है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑप्शन देखिए, tan x minus cot x, tan x minus cot x minus 3x plus c, and this is in the first option. See this question number 12 of the same type. question number 11 की तरह इसमें ट्रिग्नोमेट्री के ये important results यूज़ करने हैं. अगर आप ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं तो आप भी इसे कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो here I have given in this question number 12 already the integration is given. If integration of sin x to the power 8 plus cos x to the power 8 upon 1 minus 2 sin square x into cos square x equal to k times sin 2x plus c, then I have to find the value of this k. So here is the integration of sin x to the power 8 plus cos x to the power 8 upon 1 minus
2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, तो इस फंक्शन को, इस टर्म को मैं यूज़ करने वाला हूँ फार्मूला। अब भी जो 4 फार्मूले हमने लिखे थे उसमें का पहला ही फार्मूला था साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देन उसको रिवर्स उल्टा यूज़ करूँगा मैं। 1 minus 2 sin square x into cos square x is directly can be written as sin x to the power 4 plus cos x to the power 4, and this is equal to this sin x to the power 4 plus cos x to the power 4 dx। ओके, तो ये फंक्शन है sin x टू द पावर 8 प्लस cos x टू द पावर 8 प्लस है या माइनस है, सॉरी हियर इन दिस क्वेश्चन दिस इज माइनस, सो इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये है 4th पावर का स्क्वायर और ए बी है 4th पावर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी मिलेगा साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 और a माइनस बी फैक्टर मिलेगा साइन एक्स टू द पावर 4 माइनस कॉस एक्स टू द पावर 4। आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो सेम टर्म से कैंसिल होगी। साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसका फर्स्ट फैक्टर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसका सेकंड फैक्टर होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, सो दिस इज अगेन वन आइडेंटिटी, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड व्हाट इज cos square x minus sin square x, and this is surely equal to cos of 2x। cos of 2x के कितने फार्मूलेज है? 4। cos of 2 थीटा इज फर्स्ट फार्मूला है cos square थीटा minus sin square थीटा, सेकंड इज 1 minus 2 sin square थीटा, थर्ड वन इज 2 cos square थीटा minus 1 इज, फोर्थ वन इज 1 minus tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। तो इसका फर्स्ट रिजल्ट हम यूज़ करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos square x minus sin square x इज इक्वल टू व्हाट? cos of 2x dx। तो आंसर मुझे मिल गया है, माइनस इसका इंटीग्रेशन है साइन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, और मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस 1/2 साइन 2x प्लस सी। ऑलरेडी इसका इंटीग्रेशन दिया था k टाइम्स, क्या दिया था? k टाइम्स साइन 2x, k टाइम्स साइन 2x प्लस सी। कंपेयरिंग दिस विद दिस आई हैव द वैल्यू ऑफ k, आई हैव द वैल्यू ऑफ k। k कितना मिला है मेरा? माइनस 1/2, एंड माइनस 1/2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 12 विच इज इन द ऑप्शन नंबर 2। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 13, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्लीज़ यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करने का है। सो फर्स्ट आई विल राइट दिस इंटीग्रल इन द क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? sec x to the power 4 into cosec square x dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी गिवन है, a tan क्यूब x, क्या दिया है? a tan क्यूब x प्लस b tan x प्लस c cot x प्लस k। सो आई हैव टू फाइंड दिस अननोन्स a b एंड c। सो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन अगर हम यूज़ करते हैं इसमें तो जल्दी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। So what adjustment can be done here? Sec x to the power 4 which is equal to sec square x into sec square x। तो इसे मैं sec square x into sec square x लिख लेता हूँ। First I will write this sec square x into sec square x। Now this sec square x is the derivative of what? ये sec square x किसका डेरिवेटिव है? tan x का। तो tan x इसमें लाने के लिए मैं इस sec square x को लिखूँगा 1 plus tan square x। Are you getting or not? Sec square into sec square, and second sec square is 1 plus tan square, and again cosec square is 1 plus cot square। Cosec square is what? 1 plus cot square x dx, and this cot square x is again what? 1 upon tan square x। ये स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? Why I have done this?
प्रॉपर सब्सटीट्यूशन के लिए मैंने किया है tan x इक्वल टू टी अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स डी एक्स dt मिलेगा, सब्सटीट्यूशन प्रॉपरली यूज होगा। सो इफ आई पुट tan x इक्वल टू टी, सब्सटीट्यूशन का एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx, तो dx लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट साइड में dt आ जाएगा। ये सभी प्रैक्टिस से हो जाता है, हमेशा dx उधर dt उधर होता है राइट हैंड साइड में। तो ये मेरा इंटीग्रल I इस तरह से बन गया है, sec स्क्वायर एक्स, ये देखिए tan की टर्म 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/1/t², 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/t² एज tan x इक्वल टू टी, और ये मेरा sec स्क्वायर dx है, ये बन गया है dt। देखिए अब इसे इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 इंटू 1/t² इज 1/t² प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू 1/t², टी स्क्वायर कैंसल 1 dt। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/t² प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस दिस टी स्क्वायर, 1/t² प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, तो इसे हमें इंटीग्रेट करने का है। पहले मैं टी स्क्वायर की टर्म लिख लेता हूँ और ये आखिरी में मैं लिखता हूँ 1/t², क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर कितना होगा, t³ tan³ x की टर्म मुझे पहले दिए हैं। ओके, सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर होगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, तो t³/3 प्लस ये होगा 2t, 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, 1/t² किसका डेरिवेटिव है, -1/t का, 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t²। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² होगा -1/t प्लस दिस कॉन्स्टेंट k यूज़ किया है, कॉन्स्टेंट क्या यूज़ किया है, k। ओके, तो हमें इसमें tan सब्स्टिट्यूट करने का है। सो दिस इज 1/3 t इक्वल टू व्हाट, tan x, तो ये बनेगा tan³ x प्लस 2 टाइम्स t, तो ये बनेगा 2 tan x माइनस 1/tan x, -1/tan x, तो ये बनेगा -cot x प्लस k। अब इसे कंपेयर करने का है इसके इंटीग्रेशन से, तो इसका इंटीग्रेशन था a tan³ x प्लस b tan x प्लस क्या था c cot x, प्लस क्या था c cot x प्लस k। तो कंपेयर कीजिए, ये मेरा गिवन इंटीग्रेशन है, इससे कंपेयर करेंगे तो a 1/3 tan³ x, a tan³ x, तो a इक्वल टू 1/3 है, a इक्वल टू 1/3, 2 tan x, तो b tan x, 2 tan x, तो b tan x, तो b इक्वल टू 2 है, c cot x, तो माइनस cot x, तो c इक्वल टू व्हाट क्या होगा, -1। तो देखिए इस आंसर को 1/3 2 -1, 1/3 2 -1 इज इन द सेकेंड ऑप्शन। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप में इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने का है t, अगर ये आपके समझ में आता है तो ओनली इन 2 स्टेप्स यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x log x, I have to find the integration of x log x into log x -1 dx, इस तरह का मुझे इंटीग्रल दिया है। अगर मैं इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने का है, थोड़ा कंफ्यूज भी होता हो तो कभी कभी हम ऑप्शंस के भी मदद लेते हैं। ऑप्शन की तरफ देखिए कि क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है x log x माइनस x की टर्म दिखाई दे रही है, x log x माइनस x। क्या मैं उसे t पुट कर सकता हूँ, क्या मैं उसे सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, करके देखते हैं। तो वो टर्म मुझे यहाँ से मिलेगी, आई विल मल्टीप्लाई दिस x टू दिस ब्रैकेट, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x माइनस x इंटू दिस log x dx। ओके, तो इसको मैं t सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, x log x माइनस x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव x डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1, एंड दिस इज dx इक्वल टू dt। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स,
दिस एक्स एक्स विल गेट कैंसल, ये +1 -1 भी कैंसिल होगा और यहाँ से मिलेगा log x dx इक्वल टू dt मिल गया है log x dx dt। तो इंटीग्रल काफ़ी इजी बन गया है। सो दिस x log x माइनस x दिस टर्म, इसे मुझे लिखने का है t, और ये log x dx जो है log x dx ये बन गया है dt। कितना सिंपल है, t²/2 1/2 और मेरा t का स्क्वायर, ये मेरा t x log x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस c। देखिए ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट, x log x माइनस x का होल स्क्वायर और ये 1/2, एंड दिस इज इन द सेकेंड ऑप्शन। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, दिखने को बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में काफ़ी इजी है। कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन आपका डेरिवेटिव अगर अच्छा है तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा डेरिवेटिव ऑफ u/v, जिसका डिफरेंशिएशन अच्छा है उसका इंटीग्रेशन भी अच्छा होता है स्टूडेंट्स। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है 15, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू क्या दिया है v du/dx, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx अपॉन v क्यूब। ओके, इस तरह का है। तो इसमें u/v का डेरिवेटिव है, कैसा है, इस तरह से है इंटीग्रेशन ऑफ u/v, v क्यूब में का एक v इधर एक v² इधर, और ये एज इट इज़ v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx dx। ओके, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसे मैं t सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सो इफ अगर ये t बन जाता है तो ये तो डेरिवेटिव ऑफ u/v इज दिस, dt बन जाएगा तो ये बनेगा dt। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज t और ये बनेगा dt dx, ये सब मिला के क्या होगा, ये बनेगा dt बनेगा। तो इसका भी इंटीग्रेशन बनेगा t²/2 प्लस c 1/2 t² तो ये मेरा t था, ये मेरा t था, तो ये बन गया u²/v² प्लस c। तो u²/2v² प्लस c, u²/2v² प्लस c इज इन द थर्ड ऑप्शन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नाइस प्रॉब्लम, प्रॉपर एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ेगी तभी इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो किस प्रॉपर एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत है, सी हियर क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर n माइनस x, dx अपॉन x टू द पावर n माइनस x dx। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, ये dx x टू द पावर n से मैं डिवाइड करता हूँ, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x टू द पावर n। सो हियर क्या होगा, 1 अपॉन x टू द पावर n, x टू द पावर माइनस n, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n 1 x अपॉन x टू द पावर n, यहाँ का पावर 1 है, दिस बाय दिस x टू द पावर 1 माइनस n dx। अब इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मैं एडजस्ट करूँगा ताकि इंटीग्रल मुझे इस फॉर्म में मिले, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x। ओके, सो इसका मैं पहले डेरिवेटिव चेक कर लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस n, डेरिवेटिव ऑफ 1 0 माइनस साइन एज इट इज़ 1 माइनस n एक्स टू द पावर n एक्स टू द पावर n माइनस 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस n। ओके, सो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो एक्स टू द पावर माइनस n, इस डेरिवेटिव को यहाँ पे एडजस्ट करने का है। सो दिस इंटीग्रल बिकम्स, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करने का है n माइनस 1 से। देखिए एक्स टू द पावर माइनस n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट नहीं है, तो इस कांस्टेंट से हमें डिवाइड करने का है और मल्टीप्लाई कर देने का है। डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस एक्स dx। अब ये बना f ऑफ x, ये बना f', क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। सो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन n माइनस 1 एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x इज log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस n प्लस c।
तो देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, 1/n-1 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस n, इस तरह का ऑप्शन। तो मुझे लास्ट ऑप्शन 1 माइनस, नहीं इसके साइन चेंज है, ओके। सो आई विल डू वन एडजस्टमेंट हियर, 1/n-1 लॉग ऑफ 1 माइनस 1/1 इसका साइन चेंज होगा, एक्स टू द पावर ए होगा n-1 प्लस सी। आर यू गेटिंग और नॉट? इसका साइन चेंज किया है, ए टू द पावर m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर माइनस n, तो साइन चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं। सो दिस इज़ 1/n-1 इंटू लॉग ऑफ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, x टू द पावर n-1 माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n-1 प्लस सी। सो दिस इज इन द कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज इन द फर्स्ट ऑप्शन, तो राइट, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज 17, काफ़ी सिंपल, मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव कहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपके समझ में आता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको 2 ही स्टेप में इसका आंसर मिलेगा। सो दिस इज 17, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स, सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स अपॉन व्हाट, लॉग ऑफ व्हाट, tan x dx। मुझे तो समझ में आ रहा है log ऑफ tan x का डेरिवेटिव ऊपर है, चेक करते हैं आइदर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x sec x इंटू कोसेक x है या नहीं है, चेक करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x, तो log ऑफ tan x का डेरिवेटिव 1/tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स 1/tan कॉट क्या होगा, cos x अपॉन साइन एक्स, cos सेक स्क्वायर एक्स इज 1/cos स्क्वायर एक्स। सो दिस एक cos यहाँ से कैंसिल होगा, 1/cos इंटू 1/sin, तो राइट ये है डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, log ऑफ tan x। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, सो दिस इज व्हाट f ऑफ x, और ये ऊपर का इसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या है f डैश x। तो इंटीग्रल किस फॉर्म में मिला, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x, log ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x की जगह पे मुझे लिखने का है log ऑफ tan x प्लस सी। देखिए कितना सिंपल था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। log ऑफ tan x प्लस सी, दिस इज इन द थर्ड ऑप्शन सी। नाउ सी दिस 18, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। cos ऑफ 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करने का है। cos की सारे टर्म से किस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हमें फाइंड आउट करने का है इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। अल्फ़ा इज कॉन्स्टेंट, तो नीचे की टर्म कॉस है, तो यहाँ पे भी हम कॉस का ही रिजल्ट यूज़ करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी यूज़ करेंगे, तो ये प्रोडक्ट में चला जाएगा, और फिर हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो कॉस ऑफ 2 थीटा का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस में। कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस ऑफ 2x होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos ऑफ 2 अल्फ़ा होगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, लेकिन ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस। ओके, थर्ड फार्मूला ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। पहला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड वन इज दिस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लास्ट का तो आपको पता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है cos x माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, ये 2 यहाँ से कॉमन निकलता है, और ऊपर बनेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। सेम टर्म्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो इसका फैक्टर्स हो गए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, ऊपर बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, cos x प्लस cos अल्फ़ा
dx, ये समझ में आया होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल, ए प्लस बी विल बी देयर। सो टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, पूरी दुनिया को पता है, साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस अल्फा कांस्टेंट होगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो ये बनेगा x कॉस अल्फा प्लस सी। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एंड हियर इज द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ दिस 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। tan का प्रोडक्ट है, tan ऑफ x इंटू tan 2x इंटू tan 3x dx, तो इसको हम तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। tan सम ऑफ tan इक्वल टू डिफरेंस ऑफ tan भी होता है, प्रोडक्ट सम ऑफ tan इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ tan भी होता है। तो विच कंडीशन इज टू बी अप्लाई हियर, पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूँ कि अगर मुझे tan का इस तरह का प्रोडक्ट दिखता है जिसमें दो एंगल की सम, तीसरा एंगल है x प्लस 2x, x प्लस 2x कितना है 3x, तो एट दैट टाइम कौन सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप नोट कीजिए। इफ़ b प्लस सी इक्वल टू ए, बी प्लस सी इक्वल टू ए, बी प्लस सी इक्वल टू ए होता है, देन प्रोडक्ट ऑफ दिस tan ए इंटू tan b इंटू tan c इज इक्वल टू, उनका डिफरेंस होता है, तो ये होता है tan a माइनस tan b माइनस tan c। यू कैन प्रूव दिस। आप इसे tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan लगाइए दोनों साइड पे, tan ऑफ a प्लस बी को यानी tan ऑफ b प्लस c को लिखिए, tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan b इंटू tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है 2x प्लस एक्स इक्वल टू 3x, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, बड़ा एंगल लेने का है, tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x माइनस tan ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग और नॉट? इस पॉइंट को आप नोट कीजिए। इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल, तो इस टाइम में इस रिजल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेट हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज log ऑफ sec x, log ऑफ sec ऑफ f ऑफ x, log ऑफ sec ऑफ 3x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 3, 1/3। उसी टाइप में यहाँ पे मिलेगा 1/2 log ऑफ sec 2x माइनस, यहाँ पे ये तो डायरेक्ट है log ऑफ व्हाट sec x प्लस सी। सॉल्व हो गया है और ये हमारा इंटीग्रेशन है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन देखिए, प्लस माइनस माइनस इज इन द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर MSTCT, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड। सो सियर क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस √3 sin x dx। तो ये टर्म मुझे दिखाई दे रही है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की टर्म को हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करने का है, डिवाइड करने का है। तो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, cos x प्लस √3 इंटू दिस साइन एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, साइन एक्स इंटू √3/2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/2। आई एम कन्वर्टिंग दिस इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन में ही कन्वर्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में देखिए log ऑफ tan दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे साइन आएगा तो 1 अपॉन साइन कोसेक होगा। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक होता है log ऑफ tan ऑफ x/2, तो इसीलिए मैंने इस टर्म को साइन में कन्वर्ट करने का सोचा है। सो दिस इज साइन ऑफ व्हाट, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दिस इज cos 30, दिस इज साइन 30, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ a प्लस बी, ए इज x,
यहाँ पे है cos ऑफ पाई बाई 6, तो ये बनेगा cos ऑफ पाई बाई 6, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सो मेरा इंटीग्रल बन गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सो दिस इज इक्वल टू दिस 2 साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 6 dx, उसमें का 1/2 कॉन्स्टेंट, 1 अपॉन साइन कोसेक ऑफ x प्लस पाई बाई 6 dx। डायरेक्ट फार्मूला यूज करने का है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c, लॉग ऑफ tan ऑफ दिस एंगल बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करो तो x/2 पाई बाई 6 अपॉन 2 पाई बाई 12 होगा प्लस c, एंड द आंसर इज रेडी 1/2 लॉग ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस पाई बाई 12 प्लस c, एंड दिस इज इन द लास्ट ऑप्शन। तो इसका 4 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन देखे और इस लेक्चर के भी ये 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन फॉर एमएसटीसीटी मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एमएसटीसीटी एग्जाम में दिखाई देंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ क्वेश्चन नंबर 21। ओके, बाय।